but it will not suffer from the scattering issue. So what is the advantage of this? You can do maximum doping in this device here, and channels will be here. So we will not be limited by all this kind of situation. Suppose we are increasing the carrier concentration, but at the same time our mobility will be higher in that case. So this is basically wide band gap and narrow band gap material which useful. That's why it is called high electron mobility transistor. If we see the gallium MOSFET, same dimension of MOSFET, if its cutoff frequency is 20 GHz and you are fabricating a ham, its frequency will be more than 30 or 40 GHz, double of that one. So this kind of advantage is useful in microwave circuits. Sir, it's there, right? Second. This one? Yes. Left Close. सर तो क्रॉस है ना हाँ So that's why actually gallium nitride is being used for high power applications. Some more applications of gallium nitride are, suppose we see gallium nitride in the MIC applications, radar applications, and automotive applications, and different power grids and space applications. And GaN is also used for LEDs. Right now we are using lot of LEDs everywhere. These are basically GaN based. Similarly, if we see the era of today, actually more vehicles are coming EV range. So for EV range, you have to have the very fast charging, and for fast charging of those devices, you have to have some device which can work but at very high voltages and with a higher current. So these are different applications in this case. And if we see, actually there are 3-4 technology. One was gallium arsenide. That was mainly confined for high frequency applications. But there was power limitations in that case because of breakdown voltage. That cannot be operated below above the 10 volt. But in case of gallium nitride, we can operate it around up to 100 volt, 500 volt. Even nowadays, people are using gallium nitride about 1000 volt also. So similarly, the second device, one which is coming picture also, that is silicon carbide. Actually, gallium nitride are being used for that 600, 900 volt application. If you require very high out voltage, then in that case, gallium instead of silicon carbide, some gallium nitride and all these components are also being used. Actually, and this is the MIC technology cycle which we are developing at SSPL. There is material technology. Once the material has been fabricated and designed, the devices are fabricated. Then we have to carry out the measurement of all these devices, and then based on the measurement, actually whenever you are designing any circuit, either you will require the components, or in EDS tool or basically ADS software or PSpice software, there is a component of library from which you can select the component, put on that screen or whatever that one, and you can simulate the performance of device or circuit which you are going to design. So this is basically modeling of devices. Then based on this model, circuits are designed, then fabricated. Then again, this was the measurement of the device. Then this comes to the measurement of MIC devices. Then this is the device, and later on to provide to the user, it has to be packaged and has to be supplied this one. But actually, if you see the MIC flow chart, in this case, basically some material is grown, like silicon carbide or gallium nitride, which you are using for device fabrication, is grown here, and on that the devices are fabricated. Once these devices will be tested, then only you can give some feedback on material team so that they can improve their materials. Similarly, after this complete measurement, actually this is the physical device, but for the circuit point of view, you require an electrical equivalent circuit.
or component in that software, so where you can take it and use it in simulation method. So based on this circuit design and fabrication comes then again measurements. So basically measurement play an important role in developing any technology, because based on the feedback from the measurement results, they have to improve their process as well as other measurement expectation techniques. Actually, at SSPL, we are working for development of earlier we were working for gallium arsenide technology, in which we have provided the devices up to 40 gigahertz. But in that case, power output was in millivolt or watt. So, but in case of gallium nitride, we can go for higher power as well as high frequency operations. Or other, I think somebody has discussed about material also here. No. Actually, gallium arsenide basically material is there in which gallium arsenide substrates are available. But in case of gallium nitride, you don't have the native substrate, so you have to grow gallium nitride either on silicon or silicon carbide or sapphire. Actually, if you are growing any substrate on some other substrate, there are two or three things which has to be done. So first is actually their actually if you are going, actually there should be some I forgot that word. Mismatch should be minimum. Suppose you are growing gallium nitride on silicon carbide, then mismatch is minimum, so we can easily grow the good quality of structures, so that there will be defect. This will be defect free. But in case if you have some material that has lot of mismatch, suppose gallium nitride has some features, and similarly silicon has that not compatibility with the one. Suppose you are growing some layer of gallium nitride on silicon, it will going to crack. So our device will be defective. In that case, we will not be able to use this one. This is the basic layer which SSPL is using. This is a basically silicon carbide substrate on which aluminum nitride inclusion layer deposited. Then this is the gallium nitride buffer, which is basically interface between the AlGaN and then this is wide bandgap and null bandgap material. So what I was discussing in this one, because this is the wide bandgap material, this is narrow bandgap material. If you are doping this, then the number of whole electrons will confine to the surface of this one. This is basically called 2DG, two dimensional electron gas. Because this is called 2DG because actually electrons, all the electrons are coming from aluminum nitride, and these are going in this one. So this is very narrow layer. This is basically narrow layer or gas. Why we called it? Because this is very narrow gas in which number of electrons is quite high. If you see the actually gas name is given because concentration is quite high. That's why we called it gas. And two dimensional, why we called dimension? This is device. This is GaN. This one is AlGaN. This is the interface. So electrons can move this direction or this direction. But this one is very thin. Therefore, there is no three-dimensional movement. So this is called two-dimensional electron gas. And carrier concentration is quite high, which causes actually higher current in these devices. This is being processed wafer, and this is typical high electron mobility transistor, where this is same showing. Actually, gate is fabricated here, and source and drain are here. So this is basically channel where electrons are flowing from source to drain. And there are two things. One is actually if you are going for high frequency application, two things are mainly controlling all those frequency operation. One is the gate. Another one is the actually mobility of these carriers. If you can understand that this is drain, this is source. Electrons are going from here to here. Actually, my transition time, how much transition time will be? It depends on the spacing of all these drain and source spacing. So if you see, if suppose I have to go from one place to another place, and if road is quite empty, then I can go very fast in this case. Similarly, the speed of vehicle is quite high, so it will take less time to go from here. Similarly, actually one thing is you can increase the electron velocity. That is a material property. So we go for in place of silicon or germanium, we go from silicon to gallium arsenide. Its mobility was around 7 or 8 times higher. If for the silicon
By using a silicon transistor, it can work up to megahertz or some below gigahertz range. But at the same time, if I change my material from silicon to gallium arsenide, then my mobility has increased 10-fold, so frequency of operation will also increase in the same fold. Second thing is, if I can reduce the size of this gate, basically earlier it was 0.7 micron, 0.5 micron. If we are increasing this gate length, basically, so gate length increase means my frequency of operation will be reduced in that state. So I think you have heard about 20 nanometer node, 10 nanometer node in microprocessor. Node means gate size. If you are reducing the gate size, it means you can get a higher and higher frequency. But there is a limit, you cannot go beyond some frequency. So you have to go for material engineering. So some material in which the mobility can be increased, that will be better. And this is basically a library of components. Actually, we were discussing about any active device. This is source, this is drain, this is again source. So between source and drain, this is the gate terminal. Actually, two terms I have described here: gate length and gate width. Basically, gate length is the thickness of this line gate. Basically, electrons are flowing from source to drain. So smallest is the gate. My frequency of operation will be higher and higher. So we have developed at SSPL devices with 0.5 micron, 0.4 micron gate length. In that case, the cutoff frequency was around 25 gigahertz. And if we have reduced our gate size to 0.25 micron, my frequency of operation has increased to 34 gigahertz. And for 0.15 micron, our frequency of operation is more than 40 gigahertz. So with 0.15 micron, we can operate the devices above 40 gigahertz. So this is basically source. This is basically picture of device, how it's look like. Source, drain and source. This is basically two gate devices, gate 1 and gate 2. So actually this is the thickness is the basically gate length, that is 0.5 micron, 0.4 micron. Similarly, this is the gate width. Suppose actually if you have to design an amplifier, you will select some device. What is the criteria of that device, selection of device? Basically, it depends on 2 or 3 things. First thing is actually in which frequency you have to design the amplifier. Suppose you have to design 1 to 2 gigahertz, your device should work in that frequency range. And if you want to design your amplifier for high frequency, then device should be properly for that frequency band. So based on this requirement, I will select which device is suitable for me. Whether it will be 0.4 micron, 0.25 micron gate valve or this one. Similarly, what is the current requirement or gain requirement in that amplifier? Actually, this is a 2-finger device. If this is 100 micron and this is 100 micron, so my total gate width is 200 micron. So my 200 micron device will give, suppose 1 ampere per mm is current, my 200 micron device will give 200 milliampere current. And if I am operating it at 1 volt, so it will be giving me 200 milliwatt power. But if I have to use the device for higher power, so either there are 2 options. Either I should increase the voltage or I should use the bigger device which contain more than 2 gates. Like here, this is similar structure, we can extend it. Now in place of 2 gates, here are 4 gates. So my device size has increased to 400 micron if it is 100 micron. So in that case, my device 400 micron device will give 400 microampere current, 400 milliampere current, and so that power will be double. So based on the requirement of the circuits, if you have to design a power amplifier or small signal amplifier or low noise amplifier, you are going to select the device. In this tile, actually this is a small part of that wafer. In this tile you can see different type of transistors, starting from 2 gates to 20-30 gate figures. So as per the requirement, because we are developing a complete library of devices, so as per the requirement of the designer, he or she can select any device from that particular library and use for his or her applications. Actually, have you heard about LNA applications? Anything? Then what are the PA applications, switching MICs? You have some idea, so that it can be understood in the proper way. Actually, there are different kinds of amplifiers. Suppose you have to design a system in which a transmitter module is there or receiver module is there. Suppose we discuss about the satellite.
Suppose we are sending some signal from earth station to satellite, so there will be some receiver. So receiver chain will be actually first stage of receiver is low noise amplifier, because whatever signal we are transmitting from here, it will be reduced to a certain level, so that we will have only a small signal. So we need first stage of any receiver that has high actually sensitivity, but at the same time it should introduce the minimum noise, because my signal is very low. And the other case is there, actually if you are transmitting from the earth station, actually you have to transmit a very high power. In that case, that is basically power amplifier. So there are different applications like low noise amplifier, power amplifier. Similarly, in a TR module, there is switch. जो TR module है, that's at the some time it will receive the information, and at the some time it will transmit the information. So it has to be, but antenna is common for both the cases. Whenever signal is transmitting, it will connect the switch to the antenna. So it will transmit the antenna through power amplifier. But when we have to receive the signal, What type of switch are used here? actually earlier this is basically transistor is used as a switch. If it is in on condition, then it will be actually SPDT switch kind of thing will be there. Single pole and dual throw. So SPDT is made up of what? Pin diode? नहीं, SPDT में सारे कोई ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, फैट या हैम्प को यूज करके. एक्चुअली वन इनपुट होगा, दैट एक्चुअली आई विल यूज टू ट्रांजिस्टर्स एट ए टाइम, वन विल बी ऑन, तो माय इनपुट सिग्नल इसको यूज करके Suppose suppose. This is antenna basically. Actually, this is the switch basically. Actually, this is a common antenna. In a TR module, it is being used as a receiver as well as transmitter. If I have to transmit any signal from here, X, suppose I have to transmit X signal, it will go to some starting amplifier, then power amplifier, and switch position will be this one in case of transmitting. So antenna will be transmitting the signal. Similarly, when we are using that this antenna as a receiver, signal will come from here. Switch position will be 1, and it will go to receiver. Its first part will be amplifier. Then you are going to use the small geometry of device that will introduce less noise and give a higher amplification. But in case of power, high power, you require a quite large device for that one. So we have complete library of all these devices, in which as per the requirement designer can use, pick the any device and it can simulate that for his applications. So in SPDT switch, the two transistors are used. Actually sir, SPDT simply if you have at least 3 transistors must be there. One is the controlling, and if you are using first transistor, that signal is coming, it's going to in one direction. If it is on, then it's going to second switch. Minimum 3 transistors are required. But actually what happens? Actually suppose you have made a switch, electronic switch. These are the 2 terminals. At a time it will be, suppose this is my input, output 1 could be this, output 2 could be this. Suppose I have a transistor. Actually, initially when I am applying some signal control signal, so this will be connected to this one. So, but at the same time, it should be isolated from this. There should be isolation in this one. So, what happens? Actually, single transistors, if it is in off condition, it's give around 20 dB or 10 dB isolation. But if you require higher, because you don't want that your signal should leak in this direction. Suppose you are transmitting some signal and it's a very high signal. If somehow it leaks in this one, it is going to damage the receiver. So you require higher isolation. So for keeping this higher isolation, at least 2 transistors will be you have to use in series, so that the isolation of these 2 will be added. So minimum for that functioning of the switch, you require 3 transistors.
but you have to increase that isolation. So you require more transistor. Number of stages has to be increased so that proper isolation will be achieved. Otherwise, it will damage your receiver option. So isolation is around how much? 20 dB? 30-40 dB. Actually, isolation also decreases with the frequency. If you are using in very high frequency range, you require 2 to 3 stages. Actually, if I see the in next slide, I will show that if basically क्या है, transistor is basically this is my, suppose this is my transistor. If I am applying some signal here, it's reaching at this port. In this direction, it's giving gain 10 dB or 20 dB. But if I am feeding signal in this direction, it gives a isolation of around 10 dB or 20 dB. Or its graph is like this. Actually, at a lower frequency, isolation is better, but at a high frequency, if you are increasing, isolation reduces. So, if you want, it is around 5 dB gap between this one and this one. If you want 10 dB, 20 dB isolation at this point, so you have to add at least 2 or 3 transistors in series, so that you can get the higher isolation. So one more thing. The frequency of operation depends upon the gate length or the transit time, means reaching the time taken from source to drain. Actually, sir, इसमें क्या है, frequency of operation actually normal FVC, FT is merely Vs by Lg. This is a saturation velocity. It's a rough formula. Saturation velocity and gate length. There are two options. Either you use such material which has very high saturation mobility. Suppose I have a transistor, same size, everything was same, for silicon. Its mobility, its electron mobility is 1350, 1300 है. Suppose 1000 assume कर लेते हैं, और यही चीज मैं गैलियम आर्सेनाइड के लिए करूँ, उसकी 8000 है. तो same dimension का transistor will operate at around 7 times faster than that one. Similarly, first operation तो ये होगा voltage वाला. So there are two things. Either you have to go for the good material, or you can reduce the gate. ऐसे ही गेट सपोज 1 माइक्रोन का है, सपोज माय दिस इज माय सोर्स एंड दिस ड्रेन एंड दिस ओवर दिस इज गेट. So basically, actually gate is going to control the depletion region also. If we are separating this device, I can reduce gate size. Initially ये था 1 माइक्रोन का, 1 माइक्रोन गेट के लिए कुछ मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही थी सपोज 10 गीगाहर्ट्ज. If I reduce this 1 micron to 0.5 micron, so my frequency of operation will increase. Yes. But we cannot go beyond a limit, because अगर गेट को मैं बिल्कुल पतला कर देंगे, बहुत छोटा सा, ये सपोज ड्रेन एंड सोर्स, if gate is very small, it will not be able to control the channel, because it will be thin. Whatever if you are slice of voltage, electrons will be tunnel for this one, so you cannot go beyond certain limit. So there is a limit 0.1 micron या 0.08 micron. You cannot go beyond this. Otherwise तो channel का जो gate का control था, that will go away. तो ये वाला क्या हो गया? तो that's why nowadays आपने अगर FinFET का सुना हो, तो तब भी layer grow करते हैं. Actually gate around all the devices. तो उसमें क्या करते हैं कि जो limit है, तो basically we have to engineer either material, high frequency of operations के लिए high mobility, high saturation velocity, और दूसरा फिर ऑपरेशन है गेट वाला डिवाइस. तो इसीलिए हमने एक्चुअली एसएसपीएन में जो डिवाइसेस अभी फैब्रिकेट किए हैं, उनमें जो हमारी ये गेट लेंथ जो है एक्चुअली इट इज डिसाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन. When our gate length was 0.4 micron, our frequency cutoff frequency was around 25 gigahertz. But as a thumb rule, if you want to design any circuit at some frequency x, its cutoff frequency should be 3 times more than this one. Actually, cutoff frequency हम calculate करते हैं, उसमें दो चीजें हैं. Actually, my device have some gain. Suppose आपको एक amplifier बनाना है, तो device should give gain. Then only it is useful. Otherwise, it's not useful. If you see the curve of gain with frequency, the gain reduces with frequency, and cutoff frequency is the frequency at which my gain becomes unity. Yani whatever I am feeding to device input, that is coming at the output. So there is no use as an amplifier. जो cutoff frequency होगी, that is unity gain. So I have to use my device where some useful gain is available. Then only I can get some
gate. That's why actually if my 0.4 micron gate length device is giving cutoff frequency of 25 gigahertz, I can use it up to 8 gigahertz. Similarly, if I have to go for high frequency application, then I will use 0.25 micron gate. 0.25 micron gate is giving cutoff frequency of around 34 gigahertz. Similarly, 0.15 micron, which we have recently developed, that is giving cutoff frequency of more than 40 gigahertz. So we are designing circuits in X-band 8 to 12 gigahertz using this 0.15 micron technology. थोड़ा सा एक जस्ट एक ओवरव्यू कुछ थोड़ा सा समझ आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि अदरवाइज इट्स टोटली डिफरेंट फील्ड. इफ यू आर लिसनिंग फर्स्ट टाइम इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट. भी ऐसे ही है जैसे हम पी स्पाइस में सपोज एक्चुअली क्या है कि जस्ट पी स्पाइस कोई सॉफ्टवेयर है डिजिटल वाला. यू टेक एनी आईसी, यूज दैट आईसी, सिमुलेट योर सर्किट एंड देन फर्दर सिमुलेट अभी परफॉर्मेंस, देन ओनली गो फॉर डिजाइन. ऐसे ही सो वी हैव डेवलप्ड कंप्लीट लाइब्रेरी फॉर द डिवाइस. जो भी रिक्वायरमेंट है, सपोज हाई पावर की है, लो पावर की है, बेसिकली बजट एनालिसिस के लिए ही कैन सेलेक्ट एनी डिवाइस फ्रॉम दिस लाइब्रेरी. तो इस लाइब्रेरी में एक्चुअली वी हैव डिवाइसेस फ्रॉम 2 गेट, 4 गेट, 20 गेट अप टू 50 गेट. And then comes the characterization. Actually characterization, what is the importance of characterization? Actually if you go in a production system, वहाँ क्या है, आपके पास कोई सिस्टम बन के आया, whatever amplifier you have designed, you just measure the performance of device and you will say whether it's qualifying or not qualifying. Only two things are there. If it is qualified, you will pass it, and if it's not qualified, you will throw it for second application. But in case of technology development, whenever we are designing any device, initially using that using the software, some of the softwares are there which are used for simulating. What they do, they simulate layers of lecture. Like in this case, initially silicon carbide, then GaN, then AlGaN layer. On different layers are there. This is basic structure, but in actuality there are multiple different layers which have to be used. So once the device performance is simulated, it will go for fabrication. Then device will be fabricated and it has to be characterized. Whatever performance we have simulated and what we are getting, based on that comparison, feedback goes to the process team, so they can further optimize their process as well as design. Actually, why characterization is important? I am showing this configure. This is ADS software, Advanced Design System, which is used for circuit design at microwave frequencies. In this case, you can see a palette. This is lump component. Whatever component you want, you just pick it, place it, and connect it voltage and current, whatever you want, in which fashion you want to connect. You just connect it. Similarly, there is an option of active device, from which you can select any components, place this one, and simulate the performance of that device in particular frequency range. But how, if you are taking some device from here to here and placing it, what's happening behind this actually? So what we have to do, we have to measure our device perfectly for all the frequencies, different combination, DCID, different measurements, and we have to generate a library. Basically, this is electrical equivalent of my actual physical device, what we are fabricating. Actually, once that has been measured, from that measurement data, this is converted into electrical equivalent circuit, and this symbol is shown here. Whatever characteristics of your device will be, once you pick it, you place it, you simulate it, you will get the actual real characteristics what we are finding in this one. Similarly, you can select components, like here different components are there. This is, for example, this is NPN transistor, PNP transistor. Similarly, in our library also, we have number of devices. Suppose 2-finger device, 4-finger device, 8-finger device, and similarly N-type device, P-type device. There is a complete library. But behind this library, we have to generate lot of data that has been implemented in this one. Then only you can use this. And earlier, what we used to do, actually suppose you have to design circuit. If we see the basic circuit of rectifier, you just go to the market, take one transformer, and then diode and capacitors. This advanced design system, ADS. ये की साइड है, की साइड।
Actually, there are two softwares which are being used for microwave design. One is the ADS, another is the microwave office. AWR क्या है? Microwave office. ये दोनों लाइसेंस हैं. बट इसमें क्या है? या तो आपको कोई लाइब्रेरी मिलेगी, बट जैसे हम SSP में जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उसकी कंप्लीट लाइब्रेरी में बना के इसमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी उसको. Then only हमारे जो फैब्रिकेशन वाली जो भी चीजें हैं, सपोज एक्चुअली आई एम फैब्रिकेटिंग ए ट्रांजिस्टर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रियल ट्रांजिस्टर से थोड़ी डिफरेंट हो सकती है. Therefore, to simulate that, मुझे मेरे इस अगर मैं एक डिवाइस को पिक कर रहा हूँ, तो then it should have all characteristics from my foundry. Then only if I am designing some circuit in this software and then fabricating in our fabrication lab, its characteristics will be similar to this one. If it is not same, because actually if you see a resistance here, you took one resistance, it's not going to work like a resistor only. Because हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, रेजिस्टेंस है, उसमें कोई लीड एक्चुअली इंडक्टेंस पार्ट पे है, कैपेसिटेंस पार्ट पे है, पैरेलल कैपेसिटेंस है, दैट हैज टू बी अकाउंटेड. मैम वो से डिफरेंट है वो उसमें भी AMD रहता है. अच्छा, उसमें शायद फिर वो लाइब्रेरी ना उनकी अलग होगी. जैसे किसी का एक्चुअली क्या है, जैसे डिफरेंट फाउंड्रीज हैं, वो अपनी अपनी लाइब्रेरी जनरेट कर देती हैं और वो ADS में इंप्लीमेंट जैसे कैडेंस सॉफ्टवेयर वो उसमें भी शायद डालते हैं. तो लेकिन जो भी सर्किट आप सिमुलेट करेंगे उसमें, दैट शुड बी रेप्लिका ऑफ दैट पर्टिकुलर फाउंड्री. अगर उस सर्किट को उसी फाउंड्री में आप फैब्रिकेट कराएंगे, देन वो जो परफॉर्मेंस आएगी. अदरवाइज यहाँ परफॉर्मेंस अलग आएगी, क्योंकि जो सपोज हमारे यहाँ फाउंड्री में नहीं, ये जनरल सॉफ्टवेयर है ADS. इसमें क्या है, सपोज एक एक्चुअल कोई यूएस कंपनी है, उसकी फाउंड्री भी आप डाल सकते हैं, भी डेटा डाल सकते हैं. हम SSPL की अपनी कंप्लीट लाइब्रेरी बना के इसमें इंप्लीमेंट कर देंगे. उसमें क्या SSPL कंपोनेंट्स के नाम से, तो ये SSPL कंपोनेंट्स मतलब इन्हीं को सप्लाई होते हैं या फिर कोई भी आप वेंडर्स. एक्चुअली क्या है, जैसे यूएस वगैरह में जो फाउंड्री हैं, वहाँ की फाउंड्री हैं, वो क्या है, आप अपना सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं उनकी फाउंड्री को, तो वो आपको PDK प्रोसेस डिजाइन किट बोलते हैं, तो PDK आपको देंगे. बेसिकली उस PDK में सपोज उनका एक्चुअली क्या है, सपोज 0.25 माइक्रो का ट्रांजिस्टर हमने बनाया है और 0.25 का उन्होंने बनाया है, तो उनकी दोनों की परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी, क्योंकि वो फैब्रिकेशन का प्रोसेस अलग है, उनके स्टेप्स अलग हैं, क्या लेयर स्ट्रक्चर भी. तो if you want to fabricate your circuit with UMS, you have to use their PDK. Then only you will get ये परचेज software home purchase. Yes. वो परचेज है, वो भी लाइसेंस देते हैं बेसिकली वो ना, तो उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग आपको एक्सेस मिल जाएगा उनके एक्टिव कंपोनेंट्स का, पैसिव कंपोनेंट्स का. फिर एज पर अपनी रिक्वायरमेंट आप कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं. तो इसका एडवांटेज क्या है SSPL का, एक्चुअली सारा मेक इन इंडिया हो गया वाला, क्योंकि मटेरियल भी हम यहीं पे ग्रो कर रहे हैं, जो डिफरेंट लेयर्स है, दैट इज वेरी टिपिकल. तो इवन एक वेफर को फैब्रिकेट करने में इट एक्चुअली इट्स अराउंड 10 to 20 मास प्रोसेस. जैसे आप गेट ड्रेन सोर्स की बात करते हैं, एक लेयर पे कुछ बनेगा, उसके सेकंड लेयर फोटोलिथोग्राफी, तो इट टेक्स अराउंड 6 मंथ्स फॉर फैब्रिकेटिंग वन वेफर. उसके बाद फिर रिजल्ट आता है. और दूसरा क्या है, इन MIC जब हम लोग फैब्रिकेट कर रहे थे, अगर आपको कुछ लिमिटेड सर्किट्स आपको प्रिंट करना चाहिए, देन ओनली वो दे कैन गिव देयर PDK फॉर इवैल्यूएशन पर्पस कि आप डिजाइन करो, फैब्रिकेट करो. बट इफ यू रिक्वायर इन बल्क, दे आर नॉट डूइंग, बिकॉज़ बहुत सारी स्पेस एप्लीकेशंस एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस में इनका यूज है. जो भी हम सपोज एम्पलीफायर बनाए, लो नॉइज एम्पलीफायर बनाए या फिर स्विच बनाए, इवन जो भी एम्पलीफायर बनाते हैं. और दूसरा क्या है, एक्चुअली जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, 0.4 माइक्रोन, 0.25 माइक्रोन, 0.15 माइक्रोन, दे डू नॉट गिव एक्सेस टू देयर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. जो भी एक्सेस देते हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजी का एक्सेस देते हैं, दैट हैज लिमिटेड कैपेबिलिटी. तो इसलिए दैट्स व्हाई वी नीड टू जनरेट ऑल दिस इन हाउस एंड इन यूज. दूसरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो इशू है कि मैक्सिमम थिंग्स हैज टू बी फैब्रिकेटेड इन इंडिया, क्योंकि काफी कॉस्टली होता है, वो नंबर्स पे सप्लाई नहीं करते. इवन सपोज हम यूएस की फाउंड्री भी यूज कर रहे थे, वी हैव टू गिव एंड यूजर सर्टिफिकेट दैट वी आर नॉट गोइंग टू यूज फॉर मिसाइल एप्लीकेशंस. और वो नंबर्स में 10 या 20 देंगे अगर हम बल्क में खरीदें थाउजेंड्स में. अभी एक DRDO की लैब है LRD बेंगलोर में, उसको बहुत सारे TR मॉड्यूल बनाने हैं. इवन जो हमारा तेजस है, तेजस पे एक्चुअली फ्रंट साइड में कंप्लीट TR मॉड्यूल है, तो एक उसमें मोर देन 20,000 to 30,000 सर्किट्स चाहिए होते हैं. तो वो दे डोंट सप्लाई इन बल्क, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली एप्लीकेशन है, दे डिनाइड दैट. तो वी हैव टू डेवलप ऑल दिस कैपेबिलिटी हियर. दैट्स व्हाई सपोज एक्चुअली अर्लियर पहले क्या था, सपोज यू हैव टू डिजाइन एंड दैट
rectifier, you just go to market, take transformer and diodes and capacitor, resistor, whatever you require. But in that case, you have to know initially that for what will the output voltage for that. Accordingly, you will select your transformer. Similarly, what is the current rating of that rectifier? So you have to select a diode from that one. कि इतना करंट मेरा डायोड हैंडल कर पाए. ये सब चीजें पहले डायरेक्टली करते थे, but now it's a capability that you have number of softwares. You can simulate everything before going to fabrication. बट इस सिमुलेशन के लिए आपको पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. डिवाइस की पूरी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उसके रियल पिक्चर सिमुलेट कर सकें. एंड बेसिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क का, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है हमारा, वी कैन कंसीडर एज अ टू पोर्ट नेटवर्क. सपोज ट्रांजिस्टर ही है, ट्रांजिस्टर को suppose this is my transistor. Gate, source, source. So basically this is my port 1 VGS and this is port 2. VD and VG were planned here. So I am considering this one as source. So I am using my transistor in common source configuration. So basically, suppose I am feeding some signal here, I will getting the amplified version of this signal at this port. So basically, this is two port network. And if we have, I don't know about this transistor. This is kind of black box, and this is input and output. If you have to characterize this two port device, so whatever voltage I am feeding here, V1, V2 at this point, I1, V1 and I2 and V2. So I have some black box. If I have to characterize my device, this two port network, their basic parameters are Z parameters, that are open circuit parameters, Y parameters, short circuit parameters, similarly hybrid parameters. This is the basic we always use in our electrical circuits. Suppose I have to know the input impedance of this, that will be V1 by I1 when I2 is 0. It means my circuit is open circuited. Similarly, for that Y11, in that case you have to V2 has to be 0, it has to be short circuited. And in hybrid, at some points you have to open circuit and some points you have to short circuit. At low frequency, this is very interesting parameters. We always use all these parameters. Even for simulating and analyzing different circuits, we all use this one. But as we go for higher frequency, this open circuit, actually, suppose this is here, and you are just open circuiting this one. So when we are open circuiting something, there is some capacitance in between this, and its impedance will be X is equal to 1 upon j omega c. Basically, it's a function of frequency. If you are running at low frequency, suppose 0, 1 gigahertz, 2 gigahertz, it's lower end, so my impedance will be higher. So it will act like an open circuit. So we can consider it open circuit. But when if 1 upon j omega c, if this is 10 to the power 9, because we are working in gigahertz range, if it is 10 to the power 9, so we cannot consider it, its value will be slightly reduced lower. So it cannot be considered as an open circuit, although we were taking it as open circuit. Similarly, for the short circuit, suppose this is my output, I am short circuiting this one. In this case, basically wire, and wire has some inductance. This is basically j omega L at lower frequencies. Actually, for some parameters, I am short circuiting the output one. So what happens at omega equal to 0? It's 0. It's perfectly short circuit. But if I am going gigahertz range or terahertz range, then in that case, it will be 10 to the power 9 or 12. So it cannot be considered as short circuit. So whatever measurement I will be doing with these techniques that are not correct at higher frequencies. That's why we have to go for some other frequencies, other parameters basically. So at microwave frequency, it is going towards that optical range. If I am feeding some signal to my device, some signal is going inside and some is getting reflected.
From the refracted is basically reflected by incident. From reflected signal, I am going to get the reflection coefficient, return loss, and S11 parameters from this port at the reflection port 1. Similarly, my some signal is getting transmitted to other port. This transmitted by incident, it's going to be give the gain on device. So from the transmitted by incident, we are getting gain or loss. Similarly, transmission coefficient. If I am feeding something, what I am getting here? So this is S21. Similarly, in opposite direction. If I reverse this one, if I am feeding some signal from here, some will be reflected, that will give me the output reflection coefficient. For any two-port network, there are 4 parameters based on this. And in the, one more thing I want to emphasize in this one, in case of Y parameter or Z parameter, we were using that either it should be open circuit or short circuit. That is not visible at high frequency. That is not accurate. So in this case, rather than using short or open, in this case we use matched. If I am doing some measurement here, so output should be matched. Matched means it should be terminated in 50 ohm. So what will happen if I am feeding some signal here based on its impedance, input impedance, something is reflected. Suppose A1 is incident signal or B1 is reflected from this based on its impedance. Suppose my device impedance is 50 ohm, my source impedance 50 ohm, and it is 50 ohm. Then maximum signal will be absorbed. But it is not only 50 ohm, it may vary. If it is lower or higher, then reflection will be higher. Based on this, we will get the reflection coefficient. B1 by A1. Similarly, if I am feeding A1 here, I am getting B2 here. That B2 signal which is being received here, B2 by A1. This will be the transmission coefficient. Similarly, I reverse this. Suppose actually I may have bidirectional that component also. Suppose I have a transmission line or some passive component that can work in both directions. But active device में थोड़ा सा different होगा कि अगर हम गेट से कुछ एक्टिव डिवाइस के केस में सपोज इनपुट में हमको सिग्नल दिया, आउटपुट में एम्पलीफाई होकर मिलेगा. बट इफ आउटपुट से इनपुट फीड करते हैं, देन इट विल नॉट बी एम्पलीफाइड, इट विल बी रिवर्स ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट. उसमें क्या है, सिग्नल कम होकर मिलेगा. तो उसमें से फिर S को बेसिकली H में कन्वर्जन कर लेते हैं, H में, Y में, Z में, एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन कन्वर्ट दिस कंपोनेंट्स पैरामीटर्स इनटू Y और Z. क्योंकि जब डिवाइस का अगर एक ट्रांजिस्टर जस्ट देखें, उसका मॉडल देखें, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, गेट रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस, ऐसे ही पैरेलल कंपोनेंट होते हैं. जब भी आप सीरीज कंपोनेंट्स की बात करते हैं, यू हैव टू कैलकुलेट Z पैरामीटर्स. ऐसे ही शंट कंपोनेंट्स जो आएंगे नॉर्मली प्रेफर Y पैरामीटर्स. तो उससे जस्ट S to H कन्वर्जन, S to Y कन्वर्जन करके देन वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दोस डिवाइसेस. और उसी इक्विवेलेंट सर्किट को बेसिकली इलेक्ट्रिकल को जस्ट एडीएस में आई वाज शोइंग सम पिक टूल टाइप का ना, तो उसमें बेसिकली वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें इनहिबिटेड होनी चाहिए. दैट ओनली यूज दैट यू कैन यूज दैट. ये था एक्टिव डिवाइसेस का. ऐसे ही हमारे पास पैसिव कंपोनेंट्स हैं, ट्रांजिस्टर जैसे रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है. उसमें भी एक्चुअली आई वाज शोइंग ए इंडक्टर, उसमें कुछ टर्न्स थे सर्कुलर टाइप का. उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हेनरी का इंडक्टर में चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा. तो लाइब्रेरी में जो इंडक्टर्स हैं दैट कुड बी 0.5 टर्न टू 6 टर्न का, 0.5 टर्न, 1 टर्न, 2 टर्न, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट. सिमिलरली एक पैसिव कंपोनेंट था कैपेसिटर. उसमें क्या था, एक्चुअली देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स. वन इज MIM, मेटल इंसुलेटर मेटल. बेसिकली डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ दैट मेटल कि कितना कैपेसिटेंस हमारा आएगा. तो वी हैव वैरायटी दैट बेसिकली लाइब्रेरी ऑफ कंपोनेंट्स. उसमें आपकी XY बिट डिफाइन कर दीजिए, बट उसके अकॉर्डिंगली कितना कैपेसिटेंस ऑफर कर रहा है और किस फ्रीक्वेंसी तक काम करेगा. क्योंकि एक्चुअली जब इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करते हैं, इसमें एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है, या फिर एक्चुअली क्या है, एक इंडक्टर इट विल वर्क अप टू सम फ्रीक्वेंसी एज एन इंडक्टर, बट बियॉन्ड रेजोनेंट वो इंडक्टर और कैपेसिटर के बिहेव करना शुरू कर देगा. तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी होनी चाहिए हमें. अगर लोअर वैल्यू है उसकी, नॉर्मली सपोज आई हैव 1 नैनो हेनरी और 10 नैनो हेनरी इंडक्टर, तो 1 नैनो हेनरी की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर होगी और 10 नैनो हेनरी की फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि इंडक्टेंस उसका बढ़ जाता है. जो टर्न्स के बीच में कैपेसिटेंस आता है वो पिक्चर रोल प्ले करना शुरू कर देता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. तो डिपेंड्स ऑन क्या हमें सर्किट में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं. अब कैपेसिटर की जो बात कर रहे थे कि एक प्लेट बॉटम प्लेट है, टॉप प्लेट है, इन बिटवीन देयर इज डाइलेक्ट्रिक, दैट कुड बी पॉलीमाइड और नाइट्राइड. उस तरह का मटेरियल हो सकता है, बट उसकी क्या डायमेंशन होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसका कितना कैपेसिटेंस वो ऑफर करेगा.
we have all those dimensions, x y dimensions. उसको भी फिर लेकिन लाइब्रेरी में सपोज आपने कैपेसिटर डिफाइन कर दिया, आई वांट दिस 0.1 mm by 0.2 mm, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, देन ओनली इट विल सिमुलेट। तो उसको लाने के लिए हमें वो फैब्रिकेट करके उसके सारे मेजरमेंट्स हर स्ट्रक्चर के बेसिकली डिफरेंट साइज के मेजरमेंट करके वी हैव टू इंप्लीमेंट ऑल दिस इनटू एडीएस सॉफ्टवेयर, देन ओनली यू कैन गेट यूज द कंपोनेंट्स एंड यू विल गेट द रियल पिक्चर। यहाँ पर जैसे हमेशा यही होगा कि पहले कॉम्पोनेंट बनाएंगे। हाँ जी मैम, उसके बाद अभी हमारे पास पूरी लाइब्रेरी बन गई है। नहीं, अगर लाइब्रेरी नहीं है, हम्म। अगर हम इनिशियल लेवल पर चेक करना चाहते हैं कि कॉम्पोनेंट की कैसे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, क्या क्या चीजें। देखिए मैम, एक्चुअली एक तो है कि आप एक सॉफ्टवेयर में सिमुलेट करके आपने ले लिया, बट जो सिमुलेट कर रहे हैं वही एग्जैक्ट फैब्रिकेट नहीं होता रियलिटी में। जब आप फैब्रिकेट वो तो ठीक है, एक ग्रॉस आइडिया तो हो जाएगा। हाँ, एक दूसरा एक्चुअली इवन जब कौन सा क्या करते हैं? एटलस सॉफ्टवेयर है, एक मैडम एटलस सॉफ्टवेयर है, उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। बेसिकली आपकी जो सी एप्सिलॉन 0 a ओवर d वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हमको, तो एरिया कितना है, कितनी साइज की मल्टीप्लाइड होगी, कौन सा मैं डायलेक्ट्रिक यूज कर रहा हूँ, कितनी थिकनेस रखते हैं, उससे एक प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जैसे एडीएस के अलावा इसी तरह असल में को भी ऐसे ऐसी एटलस सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें ना बेसिकली क्या है कि कोई भी आप रेजिस्टेंस बना रहे हैं, कैपेसिटर बना रहे हैं, तो क्या मटेरियल आपने यूज की है, कितनी थिकनेस रखी है उसकी, कितनी उसमें आपने डोपिंग की है, अगर वैसी है तो वो सब ऊपर डिपेंड करेगा। तो एटलस सॉफ्टवेयर में आप वो प्लेट डिफाइन कर सकते हैं, किसकी कितनी थिकनेस है, कितनी डोपिंग करनी है, वो सारा डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए उसके लिए पोर्ट लगा सकते हैं, 2 पोर्ट लगा के उनके बीच की कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, पहले सिर्फ एक लेवल का सिमुलेशन, फिर एक्चुअल फैब्रिकेट हुआ, फैब्रिकेट होके फिर मेजर किया, तो दोनों में इसीलिए फैब्रिक इसकी जो मेजरमेंट है उससे हम फीडबैक फैब्रिकेशन को देते हैं कि ये एक्चुअली ये ना एक्चुअली इटरेटिव प्रोसेस है। फर्स्ट टाइम उसका डिफरेंस होगा, लेकिन सेकंड इटरेशन में या थर्ड इटरेशन में इट विल मैनेज है ना। वो इसीलिए एफएमडीजी और आईसी कोई भी सेटअप बनाते हैं, इनिशियली एक लो बनेगा, उसका फीडबैक वापस जाएगा, उसके बेसिस पे काफी मॉडिफिकेशन। हाँ, फिक्स है एक्चुअली उसमें मैम एक्चुअली क्या हुआ, देखो सपोज आपने आइडियली एक रेजिस्टेंस लिया 20 ओम, बट वो 20 ओम का रेजिस्टेंस तो होगा, बट उसके साथ सीरीज में कुछ इंडक्टेंस भी आएगा। तो आपको फिर एक्चुअली मेजरमेंट का फीडबैक आएगा, उससे आपको ये पता चलेगा मेरी सर्किट के डिवाइस की परफॉर्मेंस कितनी शिफ्ट हुई है, लोअर साइड में गई है कि अपर साइड में गई है। तो फिर उसमें ट्यूनर होता है, ट्यूनिंग करते हैं, तो इस कंपोनेंट को ट्यून करके आप उस पर लाने की कोशिश करते हैं। तो आइडिया जो आपका 25 ओम का रेजिस्टेंस था, इट माइट बी इन फैब्रिकेशन 28 ओम बन गया, तो आपको 25 के बजाय 23 रखना पड़ेगा ताकि वो फैब्रिकेशन में एग्जैक्टली 25 आए, और अपोजिट भी हो सकता है, तो वो रियलिटी फिर होता है। तो ये चारों पैरामीटर्स बेसिकली जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल दिस, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोवेव में करेंगे तो वी हैव टू वर्क विद एस पैरामीटर्स ओनली इनिशियली। ये वही सिमिलर है टू पोर्ट नेटवर्क के केस में। इफ वी आर फीडिंग सिग्नल फ्रॉम इनपुट, इससे हमारे दो आएंगे, एक तो रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है और दूसरा आउटपुट पे कितना पहुंच रहा है, वो गेन हो जाएगा। सिमिलरली आउटपुट से फीड कर रहे हैं तो रिवर्स साइड में कितना आ रहा है, रिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। अब अभी एक्चुअली एक्टिव और पैसिव दो तरह के हमारे पास डिवाइसेस हो गए। जो एक्टिव डिवाइसेस हैं उसमें मेनली हाई फ्रीक्वेंसी के लिए मेसफेट या हैम, वी आर यूजिंग हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर। और पैसिव वाले में आपका कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, इवन ट्रांसमिशन लाइंस। और दूसरा क्या होता है, सर्किट आप बनाते हैं उसमें क्या आपको कई जगह बैंड भी लगाना पड़ेगा और कई जगह टी भी लगाना पड़ेगा। सपोज आपको एक सिग्नल इस डायरेक्शन में जाना है, साथ में उसमें भी जाना है, तो सारी पैसिव स्ट्रक्चर्स और ट्रांसमिशन लाइन भी अलग-अलग विड्थ की। कहीं आपको सपोज मैचिंग के लिए 20 माइक्रोन विड्थ चाहिए, 30 माइक्रोन विड्थ की चाहिए, तो वी हैव कंप्लीट लाइब्रेरी। उसमें आपके रजिस्टर लेके 10 ओम से लेके जितना ओम तक ले सकते हैं, मैक्सिमम 1 के या 2 के तक है। सिमिलरली इंडक्टर में 1 टर्न इंडक्टर, 2 टर्न इंडक्टर, एक एक्चुअली दिखाया है ना।
ये एक्चुअली दिस इज द इंडक्टर, तो 1 2 3 दिस इज 3 टर्न इंडक्टर। तो इंडक्टर की वैल्यू हाफ टर्न भी हो सकता है मेरे पास, 1 टर्न भी हो सकता है, 2 भी, और मैक्सिमम 6 टर्न का इंडक्टर है। अदरवाइज ज्यादा टर्न का बनाएंगे, एक्चुअली जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा था उसमें एक्चुअली इनके बीच में कैपेसिटेंस आ जाएगा, तो दैट विल बी मोर कंपेयर्ड टू इंडक्टेंस, तो इट विल वर्क लाइक कैपेसिटर एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करना है देन वी शुड यूज द इंडक्टर विद लेस नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है एक्चुअली जब हम वोल्टेज या करंट मेजर कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ का इशू आता है, डिवाइस कंपोनेंट वेवलेंथ के इक्वल हो जाता है, तो आप फिक्स पॉइंट ही सपोज आपने इस पॉइंट पे मेजर किया, एक्चुअली विल बी समथिंग डिफरेंट, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो दैट्स मेन इशू जो हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है, दैट्स व्हाई वी प्रिफर एस करंट। तो on in case of passive components we used to do only एस पैरामीटर मेजरमेंट, और ज्यादा होंगी पावर मेजर कर लेगी, पावर हैंडलिंग उसकी, सपोज मैंने कोई कैपेसिटर बनाया है, रेजिस्टर बनाया है, उसकी पावर हैंडलिंग क्या है थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट कर ली, वो इससे भी कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिव डिवाइस में सपोज व्हेन वी वर इन लैब आल्सो, सपोज एक डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है तो हम डायोड की फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स देखते थे। सिमिलरली हम उस पे भी सर आगे पूछिए। हम ये डायोड पे हम देखते थे इस तरह का, जस्ट ये V एंड I इस तरह से हम जस्ट मेजर करते थे कि इसका कटिंग वोल्टेज कितना है, रिवर्स ब्रेकडाउन कितना है, वो जस्ट मेजर करते थे। नॉर्मली ट्रांजिस्टर के केस में अगर हमें करना है इसकी इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक, दिस सपोज एमीटर है तो V एंड IC एंड डिफरेंट VB पे शेयर करते हैं ना, VB अलग अलग पे, तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करते हैं DC आइडिया। इससे हमें IB का बेसिकली IB हां ये वाला IB, यस दिस इज IB, ये बेस कलेक्टर, फिर हम लोग एम्पलीफायर पढ़ते थे बीजेटी बता रहे हैं। तो वो एक्चुअली इसमें क्या है हम डिवाइस की आईवी कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं, उस आईवी कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं बेसिकली इसका जीएम, या उसमें बात करते हैं बीटा, बीटा निकालते हैं आईसी बाय आईवी। बेसिकली ये करंट कंट्रोल डिवाइस है आपका जो बीजेटी है, तो बेसिकली एक तरह से गेन बीटा हम कैलकुलेट करते हैं, इफ यू आर फीडिंग सम करंट बेस करंट तो कलेक्टर में कितना एम्पलीफाई होके मिल रहा है वो वाली चीज चेक करते हैं। सिमिलरली हम इसकी हैंड की अगर बात करें तो हैंड में जो हमारे टर्मिनल्स हैं जैसे गेट, ड्रेन एंड सोर्स, इसको भी हम इसी कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं। दिस इज VGS और दिस इज VDS, दिस IDS, this is VD, different VG के लिए VG0, VG -1, -2, -3 ऐसे। तो इसमें एक्चुअली जब डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे हम मेनली कैलकुलेट करते हैं कि मेरे डिवाइस की करंट कितनी है, मैक्सिमम करंट जो आ रही है ये कितनी है। सपोज मेरा 2 फिंगर डिवाइस है, जैसे वी वर डिस्कसिंग कि 2 फिंगर 4 फिंगर हो सकता है, उस केस में इट विल बी 200 मिली एम्पीयर। अगर मेरा 4 फिंगर डिवाइस है, अगर मेरी करंट डेंसिटी 1 एम्पीयर पर mm है, उस केस में वो 400 मिली एम्पीयर होगा। 10 फिंगर डिवाइस का 1 एम्पीयर करंट होगा, तो डिपेंड्स ऑन दैट। दूसरा क्या है डिफरेंस बिटवीन दिस, बेसिकली डेल VG डेल ID बाय डेल VG, ये GM है। इससे हम एक्चुअली डीसी कैरेक्टरिस्टिक से एक तो डिवाइस की मैक्सिमम करंट पता करते हैं, दूसरा मेरा पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है, किस वोल्टेज को लगाने से मेरा डिवाइस पिंच हो जाएगा वो पता चल जाता है। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज दिस वोल्टेज, एक वोल्टेज के बाद ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है, इसलिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे डिवाइस का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, तो हाउ मच वोल्टेज आई कैन अप्लाई टू डिवाइस फॉर द सेफर वोल्टेज। सिमिलरली एक्चुअली इसमें बीटा था, बट इफ आई एम फीडिंग IC समथिंग, IC मिल रहा था, इसमें बेसिकली चेंज इन VG कितना VD है, बेसिकली एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इसको बोलते हैं ट्रांसकंडक्टेंस।
और जो FT की बात कर रहे थे वो दैट इज इक्वल टू V वो होती है GM अपॉन ट्वाइस पाई CGS। एक्चुअली GM की ट्रांस कंडक्टेंस यहां से आ गया और एक होता है गेट और सोर्स के बीच में कैपेसिटेंस। अगर डिवाइस आप ज्योमेट्री बढ़ाते जाएंगे गेट सोर्स कैपेसिटेंस बढ़ता जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन डिसाइड होता है। इससे इतना बड़ा डिवाइस होगा गेन शुरू में ज्यादा होगा बट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन कम हो जाएगा उसका। तो डीसी मेजरमेंट करते हैं और फिर डीसी मेजरमेंट से मेनली हमें पता चल गया कि हमारे डिवाइस का करंट कितना है, ट्रांस कंडक्टेंस कितना है, गेन कितना दे रहा है और पिच ऑफ वोल्टेज क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, ये सारे पैरामीटर्स हम डीसी वोल्टेज इस मेजरमेंट से कर लेते हैं। सिमिलरली आरएफ में एक्चुअली डीसी अभी तक डीसी से मुझे ये नहीं पता चला मेरे डिवाइस का गेन फ्रीक्वेंसी के साथ कितना वेरी कर रहा है, 1 गीगाहर्ट्ज पे कितना है, 2 गीगाहर्ट्ज पे कितना है, 10 पे कितना है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। तो वी यूज एस पैरामीटर मेजरमेंट फॉर कैरेक्टराइजिंग ऑल दिस पैरामीटर्स कि हाउ माय डिवाइस गेन इज वेरी विद फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली पावर मेजरमेंट में हाउ मच पावर माय डिवाइस इज गिविंग ये पावर मेजरमेंट करता है। एक ऐसी ही डीसी की तरह पल्स साइड मेजरमेंट है, आई विल डिस्कस लाइटली अबाउट दैट वन। और एक नॉइज मेजरमेंट कि हमने सपोज डिवाइस को कोई सिग्नल दिया, इट विल एम्पलीफाई दिस सिग्नल। सपोज ए सिग्नल है, जी इज द गेन, तो आउटपुट विल बी जी मल्टीप्लाइड बाय ए। बट एज वेल एज सेम टाइम जो हमारा एक्टिव डिवाइस है इट्स इंट्रोड्यूसिंग इट्स ओन नॉइज आल्सो। तो व्हाट इज दैट नॉइज, व्हिच डिवाइसेस, जो हम बात कर रहे थे कि एलएन के केस में हमारे डिवाइस की जो एडिड नॉइज है दैट शुड बी मिनिमम। So you are using VNA for this noise measurement, S parameters measurement. Sir, VNA अभी समझ आता है? VNA में अभी आ गया है नॉइज मेजरमेंट का मेथड भी, कोल्ड नॉइज मेथड, बट पुराने वाले VNA में नहीं था। उसमें एक्चुअली पहले क्या था, VNA सिर्फ एस पैरामीटर मेजरमेंट के लिए यूज करते थे, नॉइज मेजर करने के लिए नॉइज फिगर एनालाइजर होता था। अच्छा। तो वो सेपरेट है। उसमें क्या है, आपका एक नॉन नॉइज सोर्स है, उसमें सिग्नल और नॉइज आपको पता है कितनी है, फिर आउटपुट में मेजर करते हैं तो उसका आपको पता चल जाता है कितना ये सर। ये है एक्चुअली जैसे एच वाई जेड पैरामीटर्स के लिए हम वोल्टेज मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं, एस पैरामीटर्स के लिए वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर है। तो दैट इज द ये कि एक्चुअली जस्ट एक एग्जांपल दिखाया। इसमें जो बात कर रहे थे कि मेटेरियल ग्रो होता है, जो कितना टाइम है आपके पास से 15 मिनट तो आई विल जस्ट एक फ्लेवर आना चाहिए कि हाँ ये वाली चीजें होती है, थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा। एक्चुअली पहले वेफर फ्लो किया जाता है, उसके ऊपर मटेरियल डिपॉजिट करके फाइनल डिवाइस फैब्रिकेट होते हैं और इस तरह से फिर डाइस करके सपोज आईसी हम लेके आते हैं मार्केट से। आईसी के अंदर बेसिकली होती छोटी सी आईसी है बट डिफरेंट कनेक्शंस करके तो फाइनली आप इसको लेते हैं। तो देयर आर टू वेज, आइदर यू कैरेक्टराइज को या तो आप इसको कैरेक्टराइज कर लें मेजरमेंट करने के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप वेफर पे ही कैरेक्टराइज कर लें। दैट इज मच बेटर बिकॉज़ अगर आप लास्ट में कैरेक्टराइज करते हैं तो आपका सारा प्रोसेस सपोज कोई खराब है, दैट इज नॉट वर्किंग, ऑल प्रोसेस विल बी वेस्टेड। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स विल कम इन पिक्चर, क्योंकि माइक्रोवेव के इवन इफ यू आर यूजिंग अ स्मॉल वायर दैट मेक्स अ डिफरेंस। सो समथिंग यू हैव टू डू सो दैट यू वेफर पे ही मेजर कर पाए। ये उसी का है बेसिकली वेफर से अगर डिवाइस लेके फिर हम बॉन्ड करते हैं तो बहुत सारे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आते हैं। सो वी गो फॉर द ऑन वेफर मेजरमेंट्स। ऑन वेफर में द डिवाइस व्हिच यू आर सीइंग हियर ये सारे बेसिकली डिफरेंट ज्योमेट्री के डिवाइसेस हैं। तो वी हैव स्पेशल ऑन वेफर आरएफ प्रोब्स फॉर दिस, क्योंकि जब आप वेफर पे मेजर करना चाहते हैं तो आपको ऐसा चाहिए ग्राउंड भी सिग्नल भी दोनों साथ आने चाहिए, तभी आप मेजर कर पाएंगे प्लेनरिटी अगर चेक कर लें। तो उसमें क्या है बेसिकली ये सीपीडब्ल्यू प्रोब्स हैं, जिनमें 3 पिंस हैं ग्राउंड और सिग्नल, तो ऐसे ही आउटपुट है। तो बेसिकली एक जो इनपुट है ये यहां से कनेक्शन लेके गेट और सोर्स पे प्लेस कर दिया, दूसरा ड्रेन और सोर्स पे प्लेस कर दिया। तो बाहर से फिर मैं आरएफ सिग्नल दूंगा, डीसी भी दूंगा मेजरमेंट के लिए। मैंने नहीं करता। हाँ वही एक्चुअल माइक्रोन्स में मूवमेंट होता है, तो वी हैव टू डू थ्रू माइक्रोस्कोप ओनली। हाँ मैनुअली करते हैं सारा, ये सारा का सारा ये रफली 300 माइक्रोन के आसपास होगा ये डिस्टेंस टोटल अभी जो दिख रहा है एक डिवाइस का। प्रोब तो स्पेसिंग होती है इनमें 100 माइक्रोन 150 माइक्रोन, एंड यू कैन थिंक एक्चुअली हमारा जो हेयर है उसका डायमीटर ही लगभग 100 माइक्रोन के करीब है, और जो डिवाइस का साइज है वो 0.5 माइक्रोन गेट है, 0.2 माइक्रोन गेट है। यू कैन थिंक कि कितना होगा। इसी की फैब्रिकेशन जो करते हैं ना उसके लिए क्लीन रूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अदरवाइज इफ ए डस्ट सिट्स ऑन दैट प्लेस तो गेट बन नहीं पाएगा उसमें डिवाइस का। ये 0.1 माइक्रोन का बनाना है, तो हेयर के आप कितने इस वर्टिकली ऐसे काटें तो कितना होगा।
more than 1000 pieces पर तो बहुत thin है, इसलिए ना वो जो fabrication facility है that are class 10 class 100 clean room होते हैं, उसमें क्या है आपका dust particles 1 cubic feet में 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 0.5 माइक्रोन से छोटे साइज के, अदरवाइज तो सारा आपने स्पेस बनाया 2 माइक्रोन का, उसमें कोई 10 पार्टिकल बैठ गया, अब उसके ऊपर गेट में मेटल डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 10 आ गया तो वो प्रोटेक्ट बनेगा ही नहीं आपका, तो यू कांट दैट डिवाइस विल नॉट वर्क। नहीं पूरा वेफर एक वेफर से बनता है, हाँ 3 इंच डाया का वेफर है, जब ये बन गया टेस्टिंग करते हैं 4-5 लोकेशंस पे कर ली, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, हाँ सैंपल तो ये इंडक्टर में ऐसी कैपेसिटर और रेजिस्टर, ये सीक्रेट ऑफ प्रोब सेंस में बात कर रहा था, बट सैंपल टेस्टिंग करना मतलब 4 सैंपल चारों के कैरेक्टरिस्टिक एक ही जैसे आते हैं, सब में अलग-अलग 2 to 5% वेरिएशन इज एक्सेप्टेबल, उससे ज्यादा है तो विल डिस्कार्ड दैट में उसके, और फिर पता देखेंगे रीजन क्या है उसका वेरिएशन का, क्योंकि मशीन्स जो है उनकी यूनिफॉर्मिटी एक्चुअली 3 इंच का वेफर है, सपोज मेरे पास ये 4 इंच का है, सेंटर में यूनिफॉर्मिटी बेटर होती है, जैसे साइड पे जाते हैं तो कंपोनेंट्स उतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती होंगी। ये एक्चुअली वही जो वेफर है, वेफर पे जो एक टाइल है ये वाली छोटी सी, तो उसमें फिर ये कंपोनेंट्स हैं और उस पे सर्किट्स भी हैं कुछ, ऐसे ही मल्टी लेवल प्रोसेस है, तो एक प्रोसेस कंट्रोल मॉनिटर भी बनाते हैं कि हर स्टेप को प्रोसेस किया जाए, क्योंकि सपोज आपके 10 स्टेप हैं, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन स्टेप नंबर 2 तो नेक्स्ट स्टेप तक जाने का कोई एडवांटेज नहीं है, एटलीस्ट सम एवरी प्रोसेस हैज टू बी चेक्ड। ये डिवाइस है, तो यू कैन थिंक एक्चुअली एक 3 इंच के वेफर में ऐसी करीब 81 टाइल्स आते हैं 9x9, तो एक डिवाइस पे 3 इंच वाले वेफर पे मोर देन 10,000 डिवाइसेस होते हैं। ऑफिस में क्रिटिकल इश्यूज क्या हो जाते हैं कि वेफर की जो प्रोब रख रहे हैं वो माइक्रोन में उसका मूवमेंट, उसका जो दैट कांटेक्ट, फिर प्लेनरिटी, सपोज आपकी प्रोब ऐसे हैं वो प्लेनरिटी ऐसे है, तिरछी हो गई अगर सपोज वो दैट इज नॉट इन प्लेनर, सो वी विल नॉट गेट द गुड कांटेक्ट, तो परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं आएगी, तो काफी क्रिटिकल होता है ये वाली चीज। दिस आर द कैरेक्टराइजेशन फैसिलिटी एट एसएसपीएल, हमारे पास क्या है डीसी और पल्स आई मेजरमेंट का है, एस पैरामीटर मेजरमेंट, देन पावर की जो हम बात कर रहे थे लोड पुल मेजरमेंट और नॉइज पैरामीटर मेजरमेंट। दूसरा क्या है, इफ यू गो फॉर हाई फ्रीक्वेंसी लैब, माइक्रोवेव लैब, एवरी इक्विपमेंट इज वेरी कॉस्टली, जो वीएनए है दैट इज रफली 1 to 2 करोड़ का बेसिक वीएनए जो आता है, क्योंकि लोड पुल मेजरमेंट रिसेंटली फ्रीक्वेंसी कितना है सर अगर 20 गीगाहर्ट्ज का भी देखें तो वो भी करोड़ में आएगा, 20-30 गीगाहर्ट्ज का। अभी हमने एक लिया है 67 गीगाहर्ट्ज का, वो करीब 5 करोड़ का है टोटल उसका मिला के। ऐसे ही ये भी लोड पुल सिस्टम भी रिसेंटली इंस्टॉल हुआ है एसएसपी। कौन सा कंपनी कौन सा है? ये आरएनएस का है, हमारे पास की साइड का है, की साइड का। तो ये लोड पुल सिस्टम है, फोकस माइक्रोवेव है, उसमें एक्चुअली वीएनए भी यूज करते हैं और भी कंपोनेंट यूज करते हैं, तो 26 गीगाहर्ट्ज तक का मेजरमेंट है। It has been installed recently at SSPL, तो इसकी भी कॉस्ट लगभग 8 से 10 करोड़। तो every facility if you want to establish that is very costly, और उसका मेंटेनेंस भी वैसे ही रहता है। तो ये DCID और पल्स आईडी का और ये एस पैरामीटर जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग, S21 से फिर FT कैलकुलेट करते हैं, H21 S से H में कन्वर्जन करते हैं। H21 इज बेसिकली I2 by I1 यूनिटी करंट गेन फ्रीक्वेंसी। तो जब H1 को एक्सट्रैपोलेट करते हैं तो वी गेट अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक 0.25 माइक्रोन का जो था उसमें 35 गीगाहर्ट्ज की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। स्टार्टिंग में गेन इधर आओ 30 डिग्री, नेक्स्ट स्लोली रिड्यूसिंग यहां पे यूनिटी है। तो ऐसे ही लोड पुल वाला मेजरमेंट है। लोड पुल का मेजरमेंट में एक्चुअली पल्स आईडी कैलकुलेशन की जरूरत क्या है, जस्ट दो लाइन में आता हूं। DCI मेजरमेंट जब हम कर रहे हैं तो डिवाइस इज कंटीन्यूअसली हिट हो रहा है हमारा डिवाइस। जब पल्स में करते हैं उसको हम माइक्रो सेकंड्स के लिए ऑन करते हैं और मिली सेकंड्स के लिए ऑफ करते हैं, ताकि एक्चुअली वेफर पे कोई थर्मल मैनेजमेंट तो भी है नहीं, तो डिवाइस की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आएगी वो DCI की वजह पल्स आईडी से ज्यादा पता चलता है, क्योंकि DC पे हीटिंग हो रही है। दूसरा गैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों था ये, एक्चुअली हुआ क्या, हमने गैन में डिवाइसेस डेवलप किए, फैब्रिकेट किए, डिजाइन किए, उनका DCI मेजरमेंट किया, सब कुछ अच्छा आ रहा था। DCI करंट 100 मिलीएम्पियर सपोज किसी डिवाइस में आ रही है, हमने पावर मेजरमेंट किया। पावर इज बेसिकली वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है, बट वी आर नॉट गेटिंग द पावर फ्रॉम डिवाइस। तो फिर हमने उसका पल्स आईडी किया, तो देखा जब आप उसको डिवाइस को पल्स में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपकी जो करंट डीसी में आ रही थी उसका बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ डिवाइस में तो बिल्कुल खत्म हो गई थी वाली। इफ यू आर नॉट गेटिंग करंट हाउ कैन यू कैलकुलेट पावर। उसमें करंट क्या था, जो नीचे बात करते हैं कि नीचे गैलियम नाइट्राइड था, एल्गियम था। गैलियम नाइट्राइड का मेन इशू है इसमें ट्रैप्स होते हैं। ट्रैप्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है,
अगर आपके कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं, आपने डिवाइस को पिंच कर दिया तो सारे के सारे जो कैरियर्स हैं वो नीचे चले जाएंगे और जैसे ही कुछ वोल्टेज लगाएंगे तो वो फिर ऊपर आ जाएंगे वापस चैनल में। लेकिन अगर देयर इज समथिंग जो ट्रैप्स है जिनको कैप्चर कर लेता है, तो आपके कुछ ट्रैप्स का रीजन क्या है? ट्रैप्स सर इसमें इनहेरेंट मटेरियल है, जब आप ग्रो करते हैं तो डिफेक्ट्स होते हैं इसमें मटेरियल में, वो इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है गैलन नेट। तो इस चीज को जो करंट शुरू डीसी में मुझे इतना करंट दिख रहा है बट पल्स साइकिल जब कराओ तो हाफ करंट आ जाता है, तो ये करंट कोलैप्स बोलते हैं। एक टर्म आती है यू कैन सर्च फॉर दैट करंट कोलैप्स, उसमें क्या है डिवाइस की करंट बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इसलिए फिर आपको मटेरियल की क्वालिटी को बहुत अच्छा सा ग्रो करना पड़ेगा। तो एक फीडबैक ये दिया था हमने मटेरियल टीम को, तो मटेरियल टीम ने फिर उसको अपने जो ग्रोथ प्रोसेस है उसको ऑप्टिमाइज किया। तो ऐसी प्रोसेसिंग में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे इफेक्ट होती है। तो ये गैप में ही है, गैप हमारे साइड में ऐसा कोई इशू नहीं था। तो ये पल्स आई भी काफी यूज किया हमने, तो हीटिंग के अलावा ट्रैप्स को कैरेक्टराइज करने के लिए काफी यूजफुल है। और फिर हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, देखो डीसीआई में आ रहा था, इससे बेटर हो गई पल्स आई में थोड़ी सी, बट जब फाइनली प्रोसेस को फुली ऑप्टिमाइज कर लिया, ये डीसीआई की है रेड वाली, क्योंकि हीटिंग का इफेक्ट थोड़ा सा दिखेगा, जैसे हाई वोल्टेज पे जाएंगे तो हीटिंग से करंट कम होगी। वो पल्स आई में बेसिकली और बेटर हो गई है। यहाँ पे पल्स आई में करंट बिल्कुल डाउन हो गई थी, यहाँ पे थोड़ी सी बेटर हो गई, वहाँ पे डीसी से बहुत बेटर हो गई। इट मींस हमारा प्रोसेस था और फैब्रिकेशन का मटेरियल था सारा का सारा ऑप्टिमाइज हो गया। तो इसके बाद जो हमारी वर्टिकली कैलकुलेटेड पावर थी, वी वर गेटिंग दोस पावर्स, जिसका काफी यूज रहा था ये बेसिकली केस स्टडी टाइप का। दूसरी बात करते हैं एस पैरामीटर्स की। एस पैरामीटर का एक्चुअली वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर यूज करते हैं। हमारे पास जो फैसिलिटी है, दो पर्पस है हमारे एस पैरामीटर यूज करने के। वेफर पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, एक तो वेफर स्क्रीनिंग के लिए कि कैसे डिवाइसेस की परफॉर्मेंस आती है, दूसरा जो मॉडलिंग की हम बात कर रहे थे कि डिवाइस का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है फिर सॉफ्टवेयर में डालना है, उसके लिए बहुत सारे मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मल्टी लेवल मल्टी मेजरमेंट अलग अलग बीडी के लिए, बीजी के लिए, हाई पावर पे, तो डिफरेंट मेजरमेंट्स हम करते हैं। और उसके लिए एक्चुअली हर वेफर पे मोर देन 400-500 डिवाइस मेजर करें तभी वो रियलिटी में आए पिक्चर, अदरवाइज तो वेरिएशन इतना होगा। तो दैट वी डू ये एस्टिमेट मेजरमेंट सिस्टम है एसएसपीएल पे। एंड उसमें इंपॉर्टेंट है कि वीएनए का कैलिब्रेशन, क्योंकि इस डेटा के बेसिस पे यू आर जनरेटिंग द लाइब्रेरी डेटा एंड इफ योर वीएनए इज नॉट कैलिब्रेटेड प्रॉपर्ली, इफ देयर इज सम एरर, दैट होल एक्सरसाइज विल बी वेस्टेड। क्योंकि इसी के बेसिस पे आप डिजाइन करेंगे, देन सिमुलेट करेंगे, इट हैज टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट। तो इसके लिए 3-4 मेथड्स हैं, एलआरएम, ट्रू रिफ्लेक्ट लाइन, एसओएलटी, वो कैलिब्रेशन करने के बाद ही आप मेजर करो। कैलिब्रेशन आप लोग ही करते हैं या डेली कैलिब्रेट करना होगा मेजरमेंट से पहले। एक्चुअली दो कैलिब्रेशन है इसमें, एक तो इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन, हमारा क्या है इक्विपमेंट यहाँ कनेक्टेड है और हम डिवाइस वेफर के ऊपर कनेक्टेड है, बीच में जो केबल्स लगाते हैं, बायस भी लगाते हैं, सबको अकाउंट फॉर करने के लिए फाइनली आप पावर x यहाँ सेट कर रहे हैं, तो बट यहाँ पे आपकी कम पावर आएगी, बट आप इसको अकाउंट फॉर करेंगे तभी रियल पावर निकाल पाएंगे डिवाइस पे कितनी पहुंच रही है। तो वो पूरा कैलिब्रेशन का स्टेप है, तो उसको फॉलो करके अगर वो कैलिब्रेशन ±0.01 यानी सेकंड डिजिट इसकी रेंज में आता है हमारा, देन वी कंटिन्यू, अदरवाइज तो उसको नहीं। और दूसरा ट्रांसमिशन लाइन है, आपने एक बनाई, ट्रांसमिशन लाइन का लॉस ही 0.1 dB होगा, और अगर आपको 0.1 dB मेजर करना है तो आपको कैलिब्रेशन बहुत अच्छा करना पड़ेगा। वो दैट्स द ये कुछ रिजल्ट्स हैं 0.5 माइक्रोन के, 0.25 माइक्रोन के। तो ऐसे ही ये इंडक्टर का अगर स्मिथ चार्ट को देखें, स्मिथ चार्ट में बेसिकली माइक्रोवेव में है और बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है माइक्रोवेव वाला। इसमें क्या है, इंडक्टर वाला पोर्शन ये है, कैपेसिटर वाला ये है, इधर 50 ओम होता है। तो जस्ट इसको देख के हम पता लगा सकते हैं जो माइक्रोवेव में काम करते हैं कि ये बेसिकली इंडक्टर है, इंडक्टिव है, ये कैपेसिटर की कर्व है। ऐसे ही ये सिंपल डॉट होता तो रेजिस्टेंस का कर्व होता, लेकिन ये थोड़ा कैपेसिटिव पहुंच रहा है, एक्चुअल रेजिस्टेंस कुछ फ्रीक्वेंसी पे तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, फिर अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है उसमें कैपेसिटिव इफेक्ट आ रहा है। क्लियरली इसको देख के जस्ट हम देख सकते हैं कि हमारा कैपेसिटी। और दूसरा क्या है, ये इंडक्टर है, इस लाइन तक इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे ही नीचे जा रहा है कैपेसिटर बन गया। तो मुझे यहां से पता चल जाएगा कि व्हाट इज द माय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको भी इट कैन वर्क लाइक एन इंडक्टर। ये जस्ट ऐसे ही जो पावर फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं उसमें क्या है, एक्चुअली डिवाइस के अभी हमने डीसीआई भी कर लिया, पल्स आई भी कर लिया, एस पैरामीटर कर लिया, उससे हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पता चल गई और डिवाइस के अदर पैरामीटर्स पता चल गए हाई फ्रीक्वेंसी के। अब बात करते हैं पावर की। एक्चुअली एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज देयर इन आवर इलेक्ट्रिकल एंड उसमें क्या है, एक्चुअली इफ यू हैव सम सोर्स दैट हैज सम इंपेडेंस x and if you are using a device that has some other different and if it is mismatching, so whatever power or signal you are giving at the input, it's not reaching up to that one, वो reflect हो रहा है।
तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का ही मेन कांसेप्ट यूज करते हैं। एक्चुअली हाई फ्रीक्वेंसी पे या हाई पावर पे एग्जैक्टली वो नहीं होता, बट प्रिंसिपल वही है। इसमें क्या करते हैं हम, तो हमारा कोई अगर इससे ना मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करेंगे, गेन इनपुट पावर के साथ कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे ही सपोज मेरा 1 वाट पे कुछ गेन दिखा रहा है, डिवाइस की जैसे पावर बढ़ाते देते जाते हैं उसका गेन रिड्यूस होता जाता है, तो वो चीज भी चेक करेंगे इसमें। और एक एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी हम एक्चुअली हम कोई इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, आउटपुट इज बीइंग एम्पलीफाइड। बेसिकली वो एप्लीकेशन इज बीइंग डन फ्रॉम द डीसी करंट एंड वोल्टेज वो सप्लाई जो कर रहे हैं उसी से आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। दैट फ्रॉम दैट वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी। तो दैट इज P out by P DC, यानी आउटपुट पावर मेरी कितनी है और डीसी पावर में कितनी ड्रॉप होना, उससे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो अगर मेरा डिवाइस प्रॉपर्ली मैच्ड है तो ही एफिशिएंसी अच्छी आएगी, अदरवाइज तो लो एफिशिएंसी रहेगी। और रिक्वायरमेंट एफिशिएंसी की सबसे ज्यादा है, क्योंकि कोई भी पावर फीड कर रहे हैं, एफिशिएंसी के लॉस ये है कि एक तो आपको एग्जैक्टली आउटपुट पावर नहीं मिल पाएगी, दूसरा जितनी भी पावर उसमें वेस्ट होगी दैट विल प्रोड्यूस हीट, तो आपका थर्मल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। That's why people are asking more and more efficient power amplifier. जितनी एफिशिएंसी बेटर हो उतना हमारा जो थर्मल मैनेजमेंट वाला सिस्टम है वो रिड्यूस साइज हो जाएगा, उसको पीको की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए ये दैट इज एक्चुअली DCIB से कैलकुलेट करता है कि मैक्सिमम पावर कितनी होगी डिवाइस की थ्योरेटिकल वैल्यू। तो आई वाज डिस्कसिंग कि हमारे डीसी डिवाइस की DCIB ठीक आ रही थी बट पावर नहीं आ रही थी, तो वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम DCIB कि कितनी पावर आनी चाहिए, बट रियलिटी में नहीं मिल रही थी वो। तो इसमें क्या है, एक्चुअली ये डिवाइस है, इनपुट पे ट्यूनर लगा दिया मैंने, आउटपुट पे ट्यूनर लगा दिया। ट्यूनर इज बेसिकली एक्सप्लोटेड लाइन है, माइक्रोवेव पे यूज करें तो उसमें एक तो ट्रांसमिशन लाइन ऐड करते हैं, तो उससे हम इंपीडेंस इसमें चार्ट पे सर्कुलरली घूम सकते हैं कि मेरा सपोज ये कोई इंपीडेंस है यहाँ पे, अगर मैं इसमें लाइन ऐड कर दूं तो पूरे चार्ट पे घूम सकते हैं कोई भी। तो एक्चुअल डिवाइस का इंपीडेंस x था कुछ, इसका 50 ओम था, बट ये मिसमैच था कि मैंने इंपीडेंस जो है इनपुट पर लगाया, दैट विल व्हाट विल इट विल डू, इट विल शो इट्स मैचिंग इंपीडेंस ऑफ डिवाइस और यहां से करेगा, तो टोटल पावर मैक्सिमम पावर विल ट्रांसफर एट इट्स इनपुट। सिमिलरली आउटपुट इंपीडेंस इज समथिंग, और यहां पे जो मेजर कर रहा है इसका 50 ओम इंपीडेंस है, तो व्हाटएवर पावर इट्स गिविंग आउट इट्स नॉट रीचिंग अप टू दैट वन। तो इंपीडेंस ट्यूनर, दिस इज द सोर्स इंपीडेंस ट्यूनर एंड दिस इज द लोड इंपीडेंस ट्यूनर। तो इस सिस्टम को बेसिकली लोड पुल मेजरमेंट सेटअप बोलते हैं। ये केवल एम्पलीफायर के लगता है और एनी डिवाइस? सर डिवाइस के एम्पलीफायर के लिए नहीं, एम्पलीफायर में तो आपने मैच करके बना दिया, बट एम्पलीफायर बनाने के लिए क्या मेरा गामा होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, मुझे एक्चुअली इसके कोरस्पोंडिंग एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है जिसको अगर मैं इधर से देखूं तो वो 50 ओम दिखेगा उसको, और इधर डिवाइस की तरफ से देखें तो डिवाइस का मैचिंग दिखेगा। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट मुझे बनाना है। इसके लिए जो पैरामीटर्स आएंगे वो इसी मेजरमेंट से आएंगे कि गामा S मुझे कितना बनाना है, बेसिकली रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना सर्किट का बनाना है, उस तरह से इस पैरामीटर को ही यूज करके एम्पलीफायर डिजाइन करते हैं। डिवाइस के अगर आप किसी डिवाइस की डेटा शीट देखें तो उसमें गामा S लिख देते हैं या ZS लिख देते हैं, सोर्स इंपीडेंस इतना होना चाहिए, लोड इंपीडेंस इतना होना चाहिए, बट मेरा जो कोई भी RF सोर्स है उसका 50 ओम होता है, तो आई हैव टू डिजाइन ए सर्किट इन बिटवीन जो सोर्स के अकॉर्डिंग टू 50 ओम दिखाई देगा, और इधर डिवाइस का सपोज 5 ओम है तो 5 ओम दिखाएगा, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन सर्किट है। तो वो कैलकुलेट करना डिवाइस के लिए जरूरी है, क्योंकि मेरा डिवाइस सपोज मैंने कोई डिवाइस बना दिया उसका इंपीडेंस 5 ओम है, तो मुझे पता होना चाहिए कितना इंपीडेंस है ताकि मैं वो सर्किट डिजाइन कर सकूं। इट्स एक्चुअली अपने एम्पलीफायर बनाया नहीं है, बट इट्स लाइक एन एम्पलीफायर ओनली। ये एक्चुअली इसमें भी एक्चुअली ये माइक्रोवेव नहीं है, ये थोड़ा सा एक्चुअली शायद जिसने माइक्रोवेव नहीं पढ़े उनको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ये है स्मिथ चार्ट, इसमें बेसिकली मैंने इंपीडेंस पॉइंट कहां रखा है, जैसे यहाँ पे पावर मेरी मैक्सिमम आ रही है, इधर कम है, इधर कम है, इधर कम है। अगर मैंने डिवाइस में इसका इंपीडेंस अगर यहाँ पे रख लिया इस पॉइंट पर तो मुझे कम पावर मिलेगी, भले मैं इनको पावर फीड करूं बट यू नॉट गेट 8 पावर, सो आई हैव टू मैच माय डिवाइस इन दिस रीजन। तो इसके लिए इंपीडेंस कैलकुलेट करने का हम ये करें। तो वंस आई नो अबाउट दिस इंपीडेंस पॉइंट देन डिजाइनर कैन डिजाइन एम्पलीफायर, उसे पता है कि मुझे डिवाइस पे कितना इंपीडेंस देना है, आउटपुट में कितना इंपीडेंस देना है, तब मुझे एग्जैक्टली पावर मिलेगी, अदरवाइज तो पावर नहीं मिलेगी। तो इसमें भी 3-4 चीजें हैं कि आपको मैक्सिमम पावर के लिए ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज करना है, गेन कंप्रेशन के लिए ऑप्टिमाइज करना है। अलग-अलग पैरामीटर्स के कोरस्पोंडिंग अलग-अलग इंपीडेंस आते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, किसी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही हैज टू सेलेक्ट द इंपीडेंस। बट वो एक ओम रेफर निकालने हैं सब डिवाइस का, तो इसलिए एक एग्जैक्ट फिगर आ रही है, उसके फर्दर आप यूज कर सकते हैं। ये लोड सेटअप है जो इसके लिए यूज करते हैं। इसमें भी कैलिब्रेशन मल्टी लेवल कैलिब्रेशन है,
कॉम्प्लेक्स है कैलिब्रेशन, इट टेक्स अराउंड 3 to 4 days फॉर सिस्टम कैलिब्रेशन। उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, नहीं अलग अलग है, ये अलग अलग कंपनी है। ये फोकस माइक्रोवेव का है, हाँ एक्चुअली फोकस और मोरे दो कंपनी हैं जो लोड पुल सिस्टम प्रोवाइड करती है। हाँ फोकस एंड मोरे, ये वही इम्पीडेंस ट्यूनर इस फोर्स इम्पीडेंस में मैंने अपना गामा इधर के देखा इधर के देखा सारा ऐसे लोड की साइड में आई कैन वैल्यू इम्पीडेंस, उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो ट्यूनर में है एक तो लाइन है एक स्लग है। एक्चुअली लाइन से तो आप वर्टिकली मूव कर रहे हैं और स्लग है जो इंसर्ट कर रहे हैं वो एक मिसमैच दे रहा है जिससे आप रिफ्लेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली सपोज ये इलेक्ट्रोनिकली कंट्रोल है, इंपीडेंस ये स्पेस चार्ट पे किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे इट विल सेट अकॉर्डिंगली कि इंपीडेंस के लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए, इस कंप्लीटली कैलकुलेटेड। 2 मिनट करते हैं जस्ट। तो ऐसे ही एक्चुअली आई विल नॉट गो इनटू दिस वन। इसमें क्या हुआ था, एक जस्ट दो लाइन के बताता हूं कि हम डिवाइस से मेजर करते हैं 200 माइक्रोन का अगर डिवाइस है तो वी आर कैरेक्टराइजिंग, बट जैसे ही बड़े डिवाइस पे जाते हैं तो डिवाइस के अपने इनहेरेंट वो ऑसिलेशंस होते हैं, तो डिवाइस ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। आप जैसे ही डीसी लगाएंगे तुरंत आपको आउटपुट पावर मिल जाएगा, तो इन उसको आप मेजर नहीं कर सकते, अदरवाइज विल बर्न योर वीएनए और लाइक दैट। तो उसके लिए फिर हमने डिवाइस को स्टेबलाइज किया था। उसका क्या था, डिवाइस को हमने लिया ऐसे काट के इसको फिर पैकेज किया, देन उसमें एक आरसी लगा के डिवाइस का गेन ज्यादा होता है लोअर फ्रीक्वेंसी पे, तो एक ऑसिलेशंस का इशू आता है। तो उसके लिए बेसिकली हमने डिवाइस को इनपुट से मैच किया एक आरसी लगा के और आउटपुट पे किया, तब इसको पावर मेजर कर पाए, अदरवाइज पावर मेजर करना पॉसिबल नहीं था। ये वही सेटअप है कि अगर हम इस वाले में ना अभी हमने कोई आरएफ नहीं दिया बट मल्टीपल आरएफ आउटपुट मिल रही थी हमें डिवाइस में, इट मींस ये ऑसिलेट कर रहा था अपने आप, जैसे डीसी लगाओ तुरंत आउटपुट आएगी, तो इट विल कॉज बर्निंग ऑफ आवर वीएनए। तो इसको स्टेबलाइज करने का एक प्रोसेस किया था। बाद में क्या किया हमने, ऑन वेफर में ही वेफर पे ही कैपेसिटर फैब्रिकेट कर दिया बाद में डिवाइस के साथ में, ये इशू रिजॉल्व हो गया था उसका। अदरवाइज तो हाई पावर डिवाइसेस को मेजर नहीं कर पा रहे थे हम लोग। ये वही कर्व है उसके डिफरेंट ज्योमेट्री डिवाइसेस के 1 mm का 2 mm का टोटल गेट विड्थ जो बोलते हैं ना 4 गेट 10 गेट लगा के, तो हाई पावर वाले डिवाइस। तो इससे हमने एक ही डिवाइस से 15 वाट मेजर की थी ऑन वेफर, और अब डाइस करके वी हैव मेजर्ड 150 वाट, 150 वाट सिर्फ 2 mm बाय 2 mm वाले डिवाइस से। ये 3 mm का डिवाइस था, इससे 15 वाट मेजर की थी ऑन वेफर केस में। बट वो हाई पावर के लिए ऑन वेफर के लिए जो प्रोब्स होती हैं वो बर्न हो जाती हैं, तो हमने 150 सेपरेटली डाइस करके किया था। ऐसे ही नॉइज है, नॉइज का थोड़ा डिफरेंट सेटअप है, लोड पुल की तरफ है, बट इसमें एक्चुअली इनपुट इंपीडेंस को वेरी करके हम गामा को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि डिवाइस हमारा मिनिमम नॉइज फिगर दे। तो किसी को पावर एम्पलीफायर बनाना है तो गामा एस और गामा एल की जरूरत पड़ती है, यानी जेड और जेड की, और लो नॉइज के लिए डिवाइस की तरफ से अलग होती है। तो उसके लिए क्या ऑप्टिमम इंपीडेंस होना चाहिए वो कैलकुलेट करके देन अगर लो नॉइज एम्पलीफायर बनाएंगे तो लोएस्ट नॉइज उसकी आएगी स्पेस में। तो इस सेटअप में डिफरेंट ये सारा एक्चुअली डिवाइस को कैसे स्टार्टिंग से लेके और फिर पैकेज करके, दिस इज द वायर मोल्डिंग। ये डिवाइस है, ये वायर मोल्ड करते हैं, ये गोल्ड वायर यूज करते हैं 50 माइक्रोन 25 माइक्रोन का, तो 1/4 ऑफ हेयर। तो इस तरह यूज करके देन वी हैव डिजाइन एम्पलीफायर, हमारे अपने एसएसपीएल के डिवाइस फैब्रिकेट करके ना एम्पलीफायर वी हैव डिजाइन, इट इज बीइंग यूज्ड इन सेवरल सिस्टम्स। ये कुछ एम्पलीफायर्स हैं, ये एमआईसी का मेजरमेंट है, वो तो सर्किट का था, अब वो डिवाइस का था। तो सर्किट में एक्चुअली वीजीबी यहीं लगानी है आपको, पोर्ट पे लगानी है। तो ये जैसे 2 स्टेज सर्किट है, मेरे 2 ड्रेन की वायर्स होंगी, 4 वायर्स होंगी, अकॉर्डिंगली आई हैव टू कनेक्ट ऑल दिस थिंग्स एट ये सर्किट का मेजरमेंट है, क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट्स भी आ गए, ट्रांजिस्टर भी आ गए। तो ये एक्चुअली हमें इसका मेजरमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। थैंक यू। ये वाला था। और रिसेंटली हमने एक सिस्टम खरीदा है, एक जस्ट टू गिव यू फ्लेवर यू कैन थिंक इन दिस डायरेक्शन। इसमें क्या है, डिवाइस से हम ऑपरेट कर रहे हैं, व्हेन वी आर अप्लाइंग सम वीडी और वीजी, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो डिवाइस का जो चैनल है बेसिकली जो गेट के नीचे जस्ट चैनल है गेट और सोर्स के बीच में, दैट वाज हीटेड। तो रियलिटी में कितना टेंपरेचर उस डिवाइस का पहुंच रहा है उस टाइम पे, तो इसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अगर डिवाइस का यहाँ पे देखें ना, ये गेट और ड्रेन के बीच में ये अराउंड 80 डिग्री तक पहुंच रहा था अभी, तो किस बायस पे, और बेसिकली दिस टेंपरेचर डिसाइड्स द लाइफ ऑफ डिवाइस। तो हमारा एक्चुअल रियलिटी में कितना कैलकुलेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे कर सकते हैं। अभी हमने जस्ट रिसेंटली एसएसपी में आया है सिस्टम, तो इससे हम डिवाइस का टेंपरेचर मेजर कर सकते हैं, तो किस वोल्टेज पे कितना टेंपरेचर पहुंच रहा है। तो ये डिवाइस के लिए काफी यूजफुल है।
This is all. Thank you. Hope थोड़ा बहुत समझ आ पाएंगे. But अभी ना गैन का एक्चुअली काफी यूज है ईवी में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बहुत यूज आ रहा है गैन का. तो गैलियम नाइट्राइड को सिलिकॉन कार्बाइड, तो इनका लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑल दिस स्टूडेंट्स को भी इस फील्ड में पढ़े. गैन का सिलिकॉन कार्बाइड का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है. Thank you so much, sir, for your words of wisdom. It will be a great pleasure for us to listen to you again our future events. Thank you once again, sir. I would like to request Mr. P.K. Chaudhary to present the sapling to Dr. C.K. Kumar. Not sapling. Sapling. Memento. And thank you all. Actually, I have tried to just relate whatever work we are doing to your understanding of this. I do it if you are able to get 10% of that, that will enough. क्योंकि at least आप students को थोड़ा सा flavor देंगे. Relative में देखते हैं तो आपको चीज़ समझ आती है. Jobs. हाँ, actually